गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आज फिर से बीपीएससी आईडीओ का जो प्रैक्टिस सेट 3 है उसको प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश से शुरू करते हैं हम। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each. 4 words are suggested, one of which fits the blank appropriately. Find out the appropriate word in each case. तो वही फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें हमें एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके इन 4 ऑप्शंस में से इसमें फिल करना है। We all have read the story of 2 friends and a bear. Once 2 friends were passing through a volatile, precarious, dense, pugnacious. तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा डेंस फॉरेस्ट। All of a sudden, a bear came out of its cave. It began to grunt. Both felt terrified. The fair weather friend ran hard and climbed up a tall tree. The other laid himself on the ground and, alarmed, positioned, frightened, pretended. तो ऑप्शन डी हो जाएगा pretended to be dead. The bear came and sniffed him. He dashed him for dead and went away. तो जो हमारा क्वेश्चन 3 है, ब्लैंक 3 है, उसमें ऑप्शंस हैं मेड, फॉन्ड, टूक, फेल्ट। तो यहाँ फॉन्ड हो जाएगा ऑप्शन सी। ही फॉन्ड हिम फॉर डेड एंड वेंट अवे. नाउ द फेयर वेदर फ्रेंड क्लाइम्ड डाउन द ट्री एंड said to his friend, what did the bear dash into your ears? तो sound, pour, mutter, whisper. Option D. Whisper. What did the bear whisper into your ears? He answered that the bear had advised him to be aware of fair weather friends. They were more dangerous than snakes. A true friend, on the other hand, is the medicine of life. He stands by us in weal and woe, thick and thin. A true friend does his own pleasure and convenience for the sake of his friend, forgoes, discards, directs, mitigates. इसका ऑप्शन ए हो जाएगा forgoes his own pleasure and convenience for the sake of his friend. Next question. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. Most of the popular tale serials are not only illogical in their storyline but also crude in their presentation. Most of the popular tale serials are not only illogical in their storyline but also crude in their presentation. इसमें कोई भी एरर नहीं है, सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर. Given below are 4 jumbled sentences. Out of the given option, pick the one that gives their correct order. In the opening scene, the young boy Peep meets as escaped convict in a graveyard. Great Expectations is a novel by Charles Dickens. The novel is set in Kent and London in the early 19th century. It depicts the
personal growth and development of an orphan named Peep. तो पहले हो जाएगा ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस. इन द नो ऑप्शन जो सी है वो होगा इसमें. द नॉवेल इज सेट इन केंट एंड लंदन इन द early 19th century. In the opening scene, the young boy Pip meets as escaped escaped convict in a graveyard. It depicts the growth and development of an orphan named Peep. The BCAD. BCAD. ओ कोई ऑप्शन नहीं है इसमें. Great Expectation is a novel by Charles Dickens. The novel is set in Kent and London in the early 19th century. It depicts the personal growth and development of an orphan named Pip. In the opening scene, the young Pip meets as escaped convict in a graveyard. मतलब BCDA. BCDA. Option D आंसर हो जाएगा हमारा. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech. Hemant said to Priyank, "Don't come with me." Hemant warned Priyank not to come with him. Option A. Pick out the most effective word from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete. Countless Indians today use neem twigs called datun as extended, durable, saturated, disposable. Option D. Disposable toothbrush. I have always admired his dash knowledge and scholarship. तो ऑप्शन डी हो जाएगा profound knowledge and scholarship. In the sentence given below, one word has been printed in bold. Below the sentence, four words are suggested, one of which can replace the word printed in bold without changing the meaning of the sentence. Find out the appropriate word in each case. In a hole below a mango tree, a snake was staying. तो इसके लिए सुटेबल हो जाएगा लिविंग. ऑप्शन सी. It was a useless attempt on her part to appear in this examination. It was a useless attempt. Useless. Futile. Option D. In the question given below, four words which are numbered. Choose the wrongly spelled word. Barricade, checkmate, accessible, precedence. Accessible इसमें डबल एस होता है. ऑप्शन सी is our correct answer. Change the following sentence into passive voice. I founded my company to sell virtual reality products. I founded my company to sell virtual reality products. So, option B. My company was founded by me to sell virtual reality products. Find out which part of the sentence has an error. Okay, he is good in mathematics, but his friend is not. तो इसमें इन की जगह एट मैथमेटिक्स होना चाहिए. तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Back in saddle. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए. Resume duty.
Substitute the underlined segment in the given sentence. He tried to prevent his friend to smoke. तो इसमें हो जाएगा he tried to prevent his friend from smoking, यानी ऑप्शन ए. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. When they read about the proposed strike of buses, they said, we will cross that bridge when we came to it. तो क्रॉस दैट ब्रिज का यहाँ हमारा हो जाता है सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑप्शन डी. Given below are four jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. One fine morning, a hunter was getting ready to go hunting. Before departing, he went to see his little baby who was sleeping in a crib. He pulled the blanket over the sleeping child. As he did so, he thought the blanket was not warm enough. तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए डी बी सी. ए डी बी सी यानी ऑप्शन बी. In the questions given below, choose the alternative which can be substituted for the given group of words sentence. A place where wild animals live. तो ये हो जाएगा लेयर, ऑप्शन डी. A solution or remedy for all difficulties or disease. ये तो पनेसिया होता है, ऑप्शन डी. In the questions given below, out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. यानी हमें सिनोनिम बताना है. पार्सिमनी, तो ये इसका मतलब कंजूसी होता है. बैंकरप्सी हो जाएगा, सॉरी मेजरलीनेस हो जाएगा, ऑप्शन डी. ट्रिबुलेशन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सफरिंग. यहाँ अपोजिट मीनिंग बताना है हमें. प्रीम, प्रीम का यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनइनहिबिटेड. 25 ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का हमारा हो जाएगा प्राइड, ऑप्शन बी. सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी. यहाँ से अच्छा इंग्लिश बाकी है यहाँ पे. 27. Select the most appropriate indirect form of the given sentence. Father said to his daughter, I will attend your convocation tomorrow. Father told his daughter that he would attend her convocation the next day. Option A is right here. Okay. Select the most appropriate synonym of the given word. Intrepid. Intrepid का यहाँ हो जाएगा हमारा सिनोनिम बताना है, तो ये हो जाएगा गैलेंट हो जाएगा इसका. इंट्रेपिड का सिनोनिम जो हो जाएगा गैलेंट, ऑप्शन ए. Select the most appropriate word for the group of words. An official pardon, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एमनेस्टी. Select the most appropriate antonym of the given word. Flexible, ऑप्शन सी स्टीफ हो जाएगा इसका. हिंदी यहाँ से हो गई शुरू. पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया किसमें प्रयुक्त हुई है. मोहन नहाकर पूजा करने लगा. उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए. तो मोहन नहाकर पूजा करने लगा, इसी में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, ऑप्शन ए.
आपका बहुवचन होगा। ऑप्शन बी आप लोग। काल के कुल भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो तत्सम इसमें घोटक हो जाएगा। ऑप्शन ए, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? तो इसमें तद्भव किसमें नहीं है? तो चवर्ण में नहीं है। ऑप्शन बी, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए, ख और घ। ठीक। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। ऑप्शन सी। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो प्रति से यहाँ प्रत्यक्ष बना है। ऑप्शन सी। पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट जो है वो कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। पराधीन का संधि विच्छेद। पराधीन का संधि विच्छेद हो जाता है आपका पर प्लस अधीन। ऑप्शन ए। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? तो ये हो जाता है आपका कर्म कारक। ऑप्शन बी। इस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। तो जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो यही इसका सही आंसर भी है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो निम्नलिखित में भाववाचक जो संज्ञा है वो ऑप्शन ए शत्रुता हो जाएगी। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं। उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी हो जाएगा संज्ञा के बाद आते हैं। इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मम। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है प्रतिद्वंद्विता। सही वर्तनी का चयन करें। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा लालायित। किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है? अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब बिना रुके, आसन्न मतलब निकट, आसन मतलब बैठने का स्थल, अली अली मतलब सखी, अली मतलब भौरा। तो जो अली जो है ल हरसिकार ली, इसका मतलब भौरा होता है। तो इसी में जो शब्द युग्म जो है वो गलत दिया है। तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। आवेशित शब्द का विलोम। आवेशित शब्द का विलोम हो जाएगा अनावेशित। ऑप्शन ए। पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पृथ्वी के पर्यायवाची वसुमती, उर्वी, वसुंधरा ये सभी हैं। ऑप्शन डी। राघव शब्द में प्रत्यय है। तो राघव शब्द में प्रत्यय का मतलब जो कि बाद में लगता है शब्द के, तो अब प्रत्यय है। रघु प्लस ओ राघव होता है। ऑप्शन ए। एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षण होता है। चित्ताकर्षक होना चाहिए था, भी गलत है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सद्भाव मतलब तो खुद ही अच्छा भाव होता है, तो अच्छा यहाँ लगाना सही नहीं है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। ऑप्शन सी ही सही है। 53 क्वेश्चन। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है। तो पौ 12 होना का अर्थ होता है अत्यधिक लाभ होना। ऑप्शन सी। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ
कान का कच्चा होना मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। मैंडेटरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, अधिदेशात्मक। उपकार के प्रति किया गया उपकार, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, तो ये हो जाता है ऑप्शन डी, प्रत्युपकार। किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होती है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाच्य। एक वाक्य शुद्ध है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? बुद्ध ने जाकर घर घर उपदेश दिए, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं? तो ऑप्शन बी जो है यही हमारा आंसर है। अपराध का एकार्थक शब्द है। अपराध का एकार्थक शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पाप। तर्कश का पर्यायवाची शब्द है। तर्कश का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा निशंक, निशंग। ऑप्शन डी, निशंग। जानवी शब्द का पर्याय है। जानवी शब्द का पर्याय मंदाकिनी, मंदाकिनी होता है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? पत्थर, पृष्ठ, भगत, भीत। तो इसमें पृष्ठ हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी। कौन सा शब्द तद्भव है? व्याकरण, गौतम, स्त्री, हाथी। तो इसमें तद्भव है हाथी, ऑप्शन डी। किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? तो ऑप्शन ए में किताब, सिनेमा, संतरा ये सभी विदेशी हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो इसमें देशज शब्द जो है वो रेवड़ है, ऑप्शन डी। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बालक पतंग उड़ा रहा था। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन। संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक हो जाता है, ऑप्शन ए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भगवान का भगवती होता है, यही ऑप्शन सही नहीं है। दोस्तों ये गद्यांश है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। तब तक हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो इसमें है ऑप्शन डी, भौतिक शरीर की नश्वरता। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किया जाने की आवश्यकता बताई गई है? क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना।
हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ऑप्शन सी। धर्म के आचरण का उद्देश्य है धर्म के आचरण का उद्देश्य है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अधि उपसर्ग लगा है, इक और ता प्रत्यय लगा है। गद्यांश में प्रयुक्त कालांतर शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति, सत्कर्म। तो ये जो सद्गुण, सत्कर्म और सद्गति हैं, सभी में सत जो है जुड़ा है, पर जो सत्यवती है इसमें सत्यवादी है, इसमें सत्य जोड़ करके बना है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वार्थी। सट प्लस आनंद शब्द की संधि होगी। ऑप्शन बी, षडानंद। इनमें से संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ईश्वर करें आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ऑप्शन सी आंसर है हमारा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? कार्ल मार्क्स ने ठीक ही तो कहा है, धर्म जनता के लिए नर्क कर देने वाली अफीम है। तो इसमें निर्देशक चिन्ह जो है वही छूटा है। ऑप्शन डी। वाक्य में जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है वहां प्रयुक्त होता है वो अल्प विराम होता है वहां पे। ऑप्शन बी। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में डैश विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी। विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग की को मान्यता दी है, वह छंद कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, मुक्तक छंद। डैश छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यह सममात्रिक छंद है। प्रथम और द्वितीय चरणों में तूक समान होता है, तो ये हमारा हो जाता है चौपाई। ऑप्शन बी। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। वसुधा के संस्थापक का नाम बताइए। तो वसुधा के संस्थापक जो हैं वो हरिशंकर परसाई। ऑप्शन सी। सिंदूर की होली शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो सिंदूर की होली जो है वो ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें जो रुक्मिणी मंगल है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। राजा निर्बंसिया किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ऑप्शन ए, अंधेरे बंद कमरे। निम्न वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं, तो इसमें अल्प विराम छूटा है। मोहन के बाद
मोहन और कमल के बीच में अल्प विराम आना चाहिए था। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो ये मोहनदास नेमिषराय की आत्मकथा है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम था। तो उनकी कविताओं का की संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं, ऑप्शन डी। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? तो पिता कहानी के लेखक हैं, ऑप्शन डी, ज्ञान रंजन। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, स्वर्णधुली। तो इसमें स्वर्णधुली जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।